In the previous class, we had studied the lionization, and lionization leads to formation of the Barr body and dosage compensation. So Barr body leads to dosage compensation, which is helpful in equalizing the dose of the X chromosome in both the sexes, that is male or the female. So for mm, undergoing the whole process of this inactivation, we actually need the factors or certain enzymes, and these enzymes are acetylases and the methylases. Now, previously you must have read that when DNA is in condensed form or in coiled form, it uh, is inactive. That means there is no transcription uh, occurring. And if the DNA is opened or it is uncoiled, that means it is active and the transcription of RNA is occurring. So, for the X chromosome inactivation, what we have to do is actually we have to condense the DNA. We have to condense the DNA so much that it become inactive and there is no transcription of gene. So, double dosing is prevented for in the double dose of X in the females. Now we know that this is the open DNA, right? And then this DNA is able to transcribe the our mRNA. Now when this combines with the histone proteins, we see these are the uh, histone proteins. We know that it is what H2A है ना, H2B, then H4H3, राइट. सो ये है ऑक्टामर, है ना, 8 यूनिट्स होती हैं. सो इट इज़ एन ऑक्टामर. So all these things are double dose, and H1 is the linker. Here it is the linker, this thing, protein, histone protein, and this is the linker DNA. Okay, linker DNA. The whole these things, you have studied this already, 10 nanometer, and in between it is around 146 or maybe 147 base pair of DNA, right? So here it goes on coiling like this, and ultimately it becomes so dense that it forms a chromosome structure. This you have seen, and further this chromosome even more condensed, okay, goes on condensing, and it appears as a darkly stained structure called as the Barr body, right? So in this manner the whole coiling is done. Now for the coiling and for making the X chromosome inactive, what we have to do, we have to either acetylase the DNA, or we have to uh, use the methylation process. Okay, so when we do the here in this case, this condensed DNA, when it has to open, okay, so we know that we have a histone tail at the end terminal. Okay, so the histone tail at the end terminal, what is occurring? Acetylation is occurring. Acetylation is occurring. So in this, the enzyme that is used for acetylation, the enzyme is called as the histone
एसिटाइलेस or acetyl, we can say acetyl transferase. So as the name says, it transfer the acyl group. Okay. What it does, it removes the lysine or the arginine rich regions, right, which are the positive amino acids. Okay, positive amino acids. So it removes these two and it adds the acyl group, which is C2H3O, right. So the bond between the DNA, which is negative, and this positive group, right, so it is loosened. So when it becomes loose, okay, when it becomes loose, the DNA opens. So acetylation में क्या होता है, opening होती है. Then if opposite occurs, opposite यानी कि जब डीएसिटाइलेशन होती है, डीएसिटाइलेशन में इसका ऑपोजिट होगा, राइट. ओपन डीएनए को अगर हमने कंडेंस बनाना है तो इस केस में क्या होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीएसिटाइलेशन, डीएसिटाइलेशन, राइट. और इसको हम बोलते हैं हिस्टोन डी एसिटाइलेस, ठीक है, एच डैक. सो इस वक्त में क्या करता है ये, अपना ये ऐसे असाइल ग्रुप जो है ये हटा लेता है और ये दोनों ग्रुप ऐड हो जाते हैं और अगेन ये कंडेंस होता है. तो इस प्रोसेस में ये डीएसिटाइलेशन में कंडेंस कर रहा है और अदरवाइज ये इसको ओपन कर रहा है, ठीक है. नाउ मिथाइलेशन में क्या होता है, राइट. मिथाइलेशन में अगर हम देखते हैं तो मिथाइलेशन में अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, है ना, हमको ओपन डीएनए से हमें करना है इसको क्लोज्ड या कंडेंस डीएनए. और इस बार जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसेस हम कर रहे हैं मिथाइलेशन, ठीक है. सो मिथाइलेशन में जो यूज़ होता है एंजाइम, उसको हम बोलते हैं मिथाइल ट्रांसफरेज. So as the name says transferase, what it does, it gives the CH3 group, right. And this methylation is actually is helpful for the process of epigenetics, ठीक है. Epigenetics, I have told you earlier, it means it helps in offing or owning of the genes फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है. जैसे पेनक्रियाज है तो इंसुलिन वाले सिक्रीट होंगे तो दूसरे बंद हो जाएंगे, तो उन केसेस में ये मिथाइलेशन ऑन ऑफ जो है काफ़ी अच्छे से करता है, राइट. सो दिस मिथाइल ग्रुप, राइट, दिस मिथाइल ग्रुप एक्चुअली दिस इज एडेड एट सर्टेन हिस्टोन रीजन्स. आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हिस्टोन्स है ना ये वाले, तो ये जो H3 रीजन है, ये H3 रीजन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि H3 रीजन में जो पहली मिथाइलेशन होती है, ठीक है, जब एम्ब्रियो जो है 8 सेल्स का रहता है, ठीक है. 8 सेल्ड कंडीशन में क्या होता है कि हिस्टोन 3 के 4th लाइसिन पे मिथाइलेशन होती है, यानी कि CH3 ग्रुप जो है वो ऐड होता है, राइट, मिथाइल ट्रांसफरेज के द्वारा. ओके. और फिर इसके बाद एक और चीज़ होती है, यहाँ पे ये लाइसिन ये ऐड हो रहा है, साथ में जो एसिटाइल ऐड हुआ है, यानी कि एसिटाइल ऐड होने से क्या होता है, डीएनए जो है वो ओपन हो जाता है, जैसे हमने यहाँ देखा था, राइट. सो एसिटाइलेशन के वक्त क्या हो रहा है, डीएनए ओपन हो रहा है. ओके. सो
यहाँ पे क्या करता है ये मिथाइल ट्रांसफरेज, एक तो ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है हिस्टोन 3 के 4th लाइसिन में, और दूसरा ये हिस्टोन 3 के ही ग्रुप में जो एसिटाइल ग्रुप है उसको हटा देता है, यानी कि H3 की ये डी एसिटाइलेशन भी करता है, 2 लेवल पे काम करता है। ठीक है, तब कंडेंसिंग शुरू हो जाती है। ओके, फिर इसके बाद जो है 16 सेल स्टेज पे जब हम आते हैं, राइट, 16 सेल स्टेज पे क्या होता है, हमारा जो है H3 का जो 27th लाइसिन है, 27th लाइसिन है, उसको उसकी मिथाइलेशन की जाती है 16। ठीक है, और ये जो होता है ये यहाँ पे जो है ओके, सो इसकी हम इसको बोलते हैं वैसे ट्राई मिथाइलेशन, 3 मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। ओके, और इसी स्टेज पे क्या होता है कि यहाँ तक तो जो है कि थोड़ा सा इस सेल स्टेज पे रिवर्सिबल होता है फिर भी ये प्रोसेस, लेकिन जब यहाँ पे पहुँच जाता है ये, तो ये प्रोसेस जो होता है इस वजह से, और ये एक और वजह है जिसको बोलते हैं H2A वाला जो हिस्टोन है, ठीक है, दिस हिस्टोन इज replaced by another histone which is called as the MH2A। ठीक है, MH2A, यानी कि इसको हम बोलते हैं मैक्रो H2A। ठीक है, दिस इज M फॉर मैक्रो H2A। नाउ इस प्रोसेस में जब ये दोनों हो जाते हैं, यानी कि 27th लाइसिन की ट्राईमिथाइलाइजेशन हो जाती है और H2A हिस्टोन रिप्लेस हो जाता है मैक्रो H2A के साथ, तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस बिकम्स इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके बाद जो है जो इनएक्टिवेशन है वो दोबारा से एक्टिवेट उसको नहीं करते हैं, राइट। और फर्दर इसके बाद एक और स्टेप होता है, यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, फर्दर और कंडेंसिंग होती है इसकी, ठीक है, क्रोमोसोम की, और 32 सेल स्टेज तक आते आते H3 का 9th लाइसिन, ये 9th लाइसिन भी मिथाइलेटेड हो जाता है, विच मेक्स द क्रोमोसोम वेरी कम्पैक्ट। ठीक है, वेरी कम्पैक्ट, एंड अल्टीमेटली, है ना, ये जो क्रोमोसोम है इतना कम्पैक्ट हो जाता है कि इट कन्वर्ट इनटू अ बार बॉडी, सो लाइकवाइज ये मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन की वजह से ये सारा प्रोसेस जो होता है कंडेंसिंग का चालू रहता है। ठीक है ना, इसके बाद जो है मैं क्रोमोसोम पे डायग्राम और उसका जो मॉलिक्यूलर लेवल पे कहाँ कहाँ क्या क्या जीन्स होते हैं वो बताऊंगी, राइट। सो यहाँ तक एक बेसिक सा प्रोसेस है कि